उसने तेरी खुददारी को ललकारा है। क्या कर रहा है यार, मर्द बन मर्द, मर्द को दर्द नहीं होता। ये कुछ लाइनें हैं काफ़ी फेमस हमारी हिंदी फिल्म्स की, जिन्हें हम अपनी आम जिंदगी में यूज़ करते रहते हैं। अगर हीरोइन टूट जाए ऑन स्क्रीन तो बेचारी बुलाई जाती है, लेकिन अगर हमारा सपोजिटली माचो हीरो रोता है ऑन स्क्रीन तो बस 2 वर्ड्स ही सुनने को मिलते हैं, कमज़ोर है। जैसे मर्द तो इंसान होते ही नहीं, रोबोट होते हैं जिनमें इमोशंस, दर्द होना एक गुनाह है। आज का टॉपिक थोड़ा ट्रिगरिंग हो सकता है, तो वी एडवाइस कि आप इसे एक खुले दिमाग से देखें और सोचें। बॉलीवुड ने हमेशा औरतों के दर्द को सॉन्ग्स में, स्टोरीज में अपनी जगह दी है और देना भी चाहिए। Women have been oppressed for centuries and the crime rate against them has always been alarmingly high. मगर जब बात मर्दों के दर्द की आती है, because it's equality which we advocate, तब उन्हें या तो विलन बना दिया जाता है या फिर उनका मजाक उड़ा दिया जाता है। और ऑन स्क्रीन भी रिफ्लेक्ट वही होता है जो ऑफ स्क्रीन हो रहा है। मर्द को दर्द नहीं होता इज नॉट अ डायलॉग एनीमोर, इट्स अ क्रूअल एक्सपेक्टेशन। बॉलीवुड इस माचो इमेज को ग्लोरीफाई तो कर देता है, लेकिन इमोशनल ट्रूथ को कहीं दबा देता है। पिछले 1 साल में ऐसे रियल लाइफ केसेस कितने सारे हुए हैं जिनमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि सच्चाई कितनी अलग और कितनी घिनौनी है। The latest is, of course, Sonam Raghuvanshi, a 24-year-old woman arrested for the murder of her husband Raja Raghuvanshi, who was just 28. उनके दोस्त राज कुशवाहा और सोनम ने बेरहमी से मर्डर करवा दिया राजा का मेघालय में। रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि सोनम ने अपनी मां को ज़बरदस्ती ये शादी करवाने पे धमकी दी थी और ये कहा था कि देखना मैं इस लड़के का क्या करूँगी। इससे पहले एक केस आया था बैंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष का, जिन्होंने एक सुसाइड वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया था खुद को मार देने से पहले। कारण था कि उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया और उनकी फैमिली का मेंटल टॉर्चर। उनके बेटे को उनकी वाइफ ने एज अ वेपन यूज़ किया था टू गेट मोर मनी आउट ऑफ हिम। ऐसी जिंदगी जीने से अतुल को मर जाना शायद ज़्यादा अच्छा लगा। राइजिंग डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन, इस टॉपिक पे पूरा पर्सपेक्टिव देने के लिए राइट एंगल की टीम ने बात की दीपिका नारायण भारद्वाज से, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं एंड शी इज़ बीन टायरलेसली वर्किंग फॉर मेन्स राइट्स। शी इज़ रैदर इमर्ज्ड एज अ बीकन ऑफ होप फॉर मेनी. Her X account timeline every day is full of cases of men facing mental and physical harassment at the hands of women. See what Deepika had to share with us. Hi, my name is Deepika Narayan Bharadwaj. Domestic violence in India against men by women is a very rampant phenomenon, but unfortunately, neither the laws recognize it nor do we have statistics to actually establish it. Because when there is no law, then how would we have the numbers telling us how many men are victims of domestic violence? So the law itself is called Protection of Women from Domestic Violence Act. Even Section 498A of IPC, which is now Section 85, 86 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, only a woman can file a complaint, can report it to the authorities if she's a victim of domestic violence or mental cruelty. A husband or a partner in a relationship cannot claim domestic violence because the law does not recognize men as victims of domestic violence. Representation of men as victims of either false accusations or domestic violence in Bollywood is concerned. I think even if Bollywood has attempted to showcase these episodes, it has been done mostly with a very trivial approach. For example, I remember there was a movie which was on false cases of IPC 498A. But even in that movie, it was the woman who was shown as the victim and the victim of society because of she happens to misuse IPC 498A. Then there was a mainstream film on false rape cases. Over there also, the man was shown to be like a womanizer, and then he gets caught up in false accusations of rape. But we have dealt with cases where the man has been absolutely vulnerable. Examples बहुत हैं और stats तो और भी ज़्यादा depressing हैं. On an average from 2015 to 2022, 101,188 men died by suicide each year, compared to 43,314 women. According to a report by News Laundry, marriage-related issues are the third most common cause for suicides, responsible for 3.28% of the suicides amongst men and 9.66% amongst women. There are 5 subcategories under marriage-related issues listed by the National Crime Records Bureau: non-settlement of marriage dowry disputes, extramarital affairs, divorce and others. इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है और ख़तरनाक बात यह है कि
मैरिज रिलेटेड स्ट्रेसेस और इश्यूज से 2022 तक 8 साल में 26,588 men and 33,480 women committed suicide. Let that sink in. And in 2023, something happened which pretty much screamed it out loud. There is no law or commission protecting or working for the welfare of men's rights, or nearly none. July 2023 में the Supreme Court refused to even hear the plea for a national commission for men, जैसे कि National Commission for Women होता है. यही apathy reflect करती है हमारी फिल्म्स में भी. Films are a reflection of the society. So naturally वॉल्यूम ऐसी फिल्म्स का ज़्यादा ही रहेगा जो क्राइम अगेंस्ट women and their rights being abused पर बेस्ड होती है. Actors Sunny Deol और मीनाक्षी शेषाद्री's दामिनी spoke about a woman being sexually assaulted और पूरी फिल्म थी उनकी न्याय की मांग पर. अग्नि साक्षी 1996 आई जिसमें a wife wants to escape a violent husband. चोरी चोरी चुपके चुपके जो 2001 में आई touched upon infertility. तापसी पन्नू's 2020 फिल्म थप्पड़, एक पिंक भी आई थी ऑन रेप केस. आलिया भट्ट्स डार्लिंग इन 2022 और अभी हाल ही में आई थी सानिया मल्होत्रा की फिल्म मिसेस. द लिस्ट हैज बीन वेरी लॉन्ग. नाउ पॉज एंड नेम एनी 2 फिल्म्स जिसमें मेंस राइट्स और उनके खिलाफ इनजस्टिस के बारे में बात की गई हो. याद आया कुछ? एनीथिंग? Exactly the point I'm trying to make today. Why is the legal system and even our films choosing to ignore the truth जिसे रोज लाखों करोड़ों मर्द जी रहे हैं? लड़कों की जान जान नहीं होती क्या? एक ऐसी फिल्म आई थी which had led to a massive controversy back then. All because the lead heroine Priyanka Chopra played a character who makes sexual advances towards an employee in her company and falsely accuses him of rape when he rejects her. पीपल फेल्ट कि फिल्म मेकर ने ऐसी स्टोरी कैसे दिखा दी जहाँ पर एक फीमेल बॉस एक मेल जूनियर को हैरेस कर रही है. द कास्ट ऑफ द फिल्म इंक्लूडेड अक्षय कुमार, करीना कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा एंड टिल डेट ऐतराज इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट फिल्म्स एवर टर्न्ड आउट इन बॉलीवुड. इससे होता ये है कि जब रियल केसेस भी आते हैं तो उन्हें भी शक की निगाह से देखा जा सकता है. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पिछले 4 साल के डेटा को देखें तो रेप केसेस में कन्विक्शन रेट हैज़ बीन अ मियर 4.3%. उसमें फॉल्स रेप केसेस को एक वजह माना जा रहा है. केरला हाई कोर्ट तक ने एक ऐसे ही केस को क्वॉश करते हुए कहा कि एलिगेशंस ऑफ रेप, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन एंड अदर मिसकॉन्डक्ट आर लेवल्ड नाउअडेज विदाउट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ so as to settle a score and also to compel the persons against whom the allegations are made to heed to the illegal demands of the complainants. Delhi Commission of Women ने तो यहाँ तक बताया कि between April 2013 and July 2014, a staggering 53.2% of rape cases registered just in Delhi turned out to be false. Yes, you heard that right. आधे से ज़्यादा cases बस complaints थे that fell flat under scrutiny. बात ये समझने की है कि जब न्यूज़ चैनल्स को ये समझ आ गई है कि मर्दों के खिलाफ होने वाले अत्याचार उनके लिए प्राइम टाइम मटेरियल बन सकते हैं तो बॉलीवुड फिल्म्स कब जागेंगी. न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम पर सौरभ जैसे शॉकिंग केसेस, वो केस आपको याद है जो ब्लू सीमेंट के ड्रम वाला केस था, उसके बारे में चिल्ला के हाईलाइट किया गया कि कैसे एक बीवी ने शादी और साथ में एक बच्चे के बाद भी एक अफेयर किया और अल्टीमेटली बीवी और उनके लवर ने दोनों ने सौरभ को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को एक ब्लू सीमेंट के ड्रम में डाल दिया. न्यूज़ पर अगर आ रहा है तो कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी ना ऐसे टॉपिक पे. इसके बाद भी बॉलीवुड डिड नॉट हैव इनफ गट्स टू मेक more such films on crimes against men. Section 375, which released in 2019, was another rare film. Meera Chopra played the role of a stylist who accuses her film's director, played by Rahul Bhatt, of rape, and ultimately she confesses to her lawyer that she had lied, but only after the director is convicted, just because the laws favored her. Films का जो tone भी होता है when dealing with crimes committed against men is not sympathetic. उसे कॉमेडी की तरह ट्रीट किया जाता है. अगर एक दुल्हन आदमियों को पैसे के लिए ठग रही है तो बस कॉमेडी फिल्म बन जाएगी उस पे, जैसे डॉली की डोली. इससे याद आता है 498A अंडर द इंडियन पीनल कोड, जो कि अब चेंज हो गया है सेक्शन 85 and 86 ऑफ द BNS. This act was introduced in 1983. It is a provision intended to protect women from cruelty in marital homes, popularly called the anti-dowry law. We are sure that this law has certainly helped a lot of women, लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत ही सीरियस तरीके से किया जाता है. दीपिका नारायण भारद्वाज ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मार्टिर्स ऑफ मैरिज में एक्सपोज किया था इसके मिसयूज को. Hello.
Hi, how are you? I'm good. Just go through this complaint couple of times, couple of more times. Yeah. 2-3 कहानियां इसके अंदर, लेकिन उसको अगर आप फील करोगे आपके साथ ऐसा हुआ है, हम्म। आना नहीं पड़ेगा आपको। कल तो अभी डिटेल में उन्होंने पूछा नहीं, थोड़ा बहुत पूछा तब बोल दिया मैंने। नेक्स्ट टाइम तो फिर वो ही ज्यादा बताना। तो अमृता जी, आप मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको 3-4-5 गाड़ी कर दीजिए, पढ़ने के बाद मैसेज बात करिए। मुझे ऐसा वाला लगे ना कि आपकी बना बना के सत्यानाश हो जाए। ये आपके साथ एक्चुअली में हुआ था ना। हाँ जी। तो सवाल ही नहीं करते थे, यू वुड हैव आंसर्ड। उसको क्या कह रहा है, साले मेरे कमरे में घुसाता था, एक खर्ची बुड्ढा है, ही वांट्स टू टच मी एंड ही वांट्स टू फील मी एंड ही वांट्स टू हैव दिस। समझते नहीं उसकी आंखों में क्या रोमिंग आईज है। नहीं, अभी 4-5 बार तो पढ़ा है, लेकिन अभी थोड़ा वो हो जाता ना। 4-5 बार और पढ़ेंगे तो सारा आपका अंदर ऐसी उसमें उसको रोल में समा जाओ। सोचो मैं मालूम हूँ ये मुझे ऐसा रोल करना है, ठीक है। इसका भुगतान करने के लिए आगे आप रेफर होगी, ये अंदर जाएंगे, ये अंदर जाएंगे, ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हमारे टर्म्स का करेंगे ना। हमारी टर्म्स है कि 50 लाख दो, हमें हमारे टर्म्स है 30 लाख दो, वो देंगे तो हमें रेफर कराएंगे। वो तो अभी भी यहाँ पे बोल रहा था कि मैं लड़का रखना चाहता, तब भी वो अलग रह रहा है, वो लड़की को रखना चाहता है। नहीं, वो तो फिर स्ट्रैटेजी है। आप प्लीज आप तो सुनो, आप इंटरव्यू मत करो। तो जी हाई रोड से मेरी एलिगेशन देखो जी, इसने क्या क्या किया है, मैं रह सकती हूँ, आप रहना चाहती हो उसके साथ? आप रहना नहीं, मैं तो नहीं रहना चाहती ना। तो उसको बोलो जी ये शादी में ये हरकत की है, तो मैं ये मतलब है उसने डाउरी डिमांड से पूछा कि मारा पीटा ये क्या है, उसकी सजा भी तो मिलेगी ना, समाज और सलाम बचाओ। और साथ में कह रहा था नेक्स्ट टाइम मेरा आएगा ना बेटा, वो सारी रिकॉर्डिंग लेके आएगा, सुनना सारा। उन लेडी को ये बता के गया है कि रिकॉर्डिंग है सारी। ठीक है, तो सुनना, पहले सुनो नहीं, कुछ नहीं सुनना, कहना नहीं, फिर उसके बाद हम अपना डिफेंस बनाएंगे जो रिकॉर्डिंग की हुई है। And I'm always there to support you, okay? Okay. Yeah. Very good complaint to these guys. और ऐसे शॉकिंग केसेस की कोई कमी नहीं है। अभी हाल ही में मई 2025 की बात है कि राजस्थान में एक 23 साल की लड़की पकड़ी गई और उसने 25 शादियां की थी। पकड़ी भी वो इस तरह से गई कि उनके होने वाले पति ने इनकी एक पुरानी शादी का कार्ड देख लिया। आजकल बहू सिंपली एक कंप्लेंट कर सकती है एंड द इंटायर फैमिली कैन बी पुट बिहाइंड बार्स, इंक्लूडिंग एल्डर्स हु समटाइम्स कैन नॉट इवन वॉक विदाउट सपोर्ट। 2019 में गुंटूर की एक 6 साल की लड़की को भी एक औरत ने डाउरी हैरेसमेंट केस में नेम किया था एज अक्यूज्ड एंड शी वाज बुक्ड बाय द पुलिस। एंड एट द एंड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से अक्सर ऐसे मामले कहीं दब जाते हैं। और हमारे बॉलीवुड क्या कर रहे हैं? 498 के ऊपर एक फिल्म बनाई दावते इश्क, जिसमें एक लड़की फेड अप ऑफ डाउरी डिमांड्स डिसाइड्स कि वो एक भोले लड़के के ऊपर डाउरी का फॉल्स चार्ज लगा देगी पैसों के लिए। द मेकर्स अलाउड हर टू रिडीम हर सेल्फ इन द एंड, ये दिखा के कि वो तो लड़के के प्यार में घिर गई है। इस पॉइंट पर आई एम श्योर कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि दिस इज़ वेरी लेस व्हेन कंपेयर टू द काइंड ऑफ challenges and crimes that women have to face. I totally agree with you. But I will again emphasize that we are seeking an equal world, not a lopsided one. अगर अभी तक we say that it's a man's world, हालात ऐसे हो गए हैं कि some women are misusing the very laws that are meant to protect them. इस पूरे मुद्दे पर आखिर में बस एक ही बात कहना चाहूँगी मैं, दर्द का कोई जेंडर नहीं होता। मर्दों का दर्द प्राइम टाइम न्यूज़ तक तो पहुँच गया है, लेकिन बॉलीवुड में कब पहुँचेगा भगवान ही जाने। जब तक हम मर्द और औरत के चश्मे से इसे देखते रहेंगे तब तक ये शीशा धुंधला ही रहेगा। बॉलीवुड को भी अब ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि वो सिर्फ एक तरफा कहानी ना सुनाए, बल्कि उस सच्चाई को भी दिखाए जिसे लाखों मर्द चुपचाप से जी रहे हैं। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट नहीं, पर ह्यूमन एम्पावरमेंट है, जहाँ हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके दर्द को, उसके अधिकार को बिना किसी शर्म और बिना किसी बायस के पहचाना जाए। क्या हम सब एक ऐसी सोसाइटी के लिए विश नहीं कर सकते जहां दर्द को दर्द ही कहा जाए, कमजोरी नहीं? The Right Angle with Sonal Kalra.